تو اب دیکھیے کیسا عجیب اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا کہ ہمارے ایک ملنے والے تھے، تو وہ اپنے دوستوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے پر بلاتے تھے، تو وہاں مٹن چل رہے ہیں، وہاں چکن چل رہے ہیں، اور کڑھائیاں چل رہی ہیں، اور بڑے بڑے ایسے پرلطف کھانے چل رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو اپنے کوٹ میں ڈالتے تھے، اور کوٹ سے ایک نا تھیلی نکالتے تھے، اور اس تھیلی کے اندر چنے ہوتے تھے، چنے، اور وہ چنے کھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ڈاکٹر نے مجھے تمام مرغن غذاؤں سے منع کر دیا ہوا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ کا جو عذاب ہے کبھی کبھی اس انداز سے بھی نازل ہوتا ہے کہ اللہ نعمتیں نہیں چھینتے، لیکن یہ والی نعمتیں جو اس نعمتوں سے بڑی نعمتیں تھیں، کیونکہ پیسے کا ہمیں کیا فائدہ؟ اگر پیسے سے ہم اچھا کھا نہیں سکتے تو اس پیسے کا ہمیں کیا فائدہ مصطفیٰ صاحب؟ یعنی اگر اس پیسے سے ہم اچھی غذا نہ کھا پائیں تو اس پیسے کا ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ اگر ہم پیسوں سے اچھا پہن نہ سکیں تو ان پیسوں کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہو تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں، وہ میرے تو کسی کام کے نہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ تمہاری چیزیں صرف 3 ہیں۔ پہلی، جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا ہے، اور جو تم نے صدقہ کر دیا وہ تمہارا ہے، کیونکہ وہ تو تمہیں درجات بلند کرنے میں ذریعہ بنے گا۔ جو کھا لیا وہ تمہارا، جو پہن لیا وہ تمہارا، جو صدقہ کر دیا وہ تمہارا، جو بینک میں پڑا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، کیونکہ ابھی اگر موت آ گئی تو وہ میرا کہاں ہے؟ یعنی کبھی سنا ہے ہم نے کہ کسی شخص کو قبر میں تدفین کرتے ہوئے $7 بھی دفن کر دیے ہوں مسلمان کی قبر میں، ساتھ میں روپے بھی دفن کر دیے ہوں؟ کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ کفن پہنا دیتے ہیں، جو پہنے ہوتے ہیں وہ بھی اتار لیتے ہیں، کفن پہنا کر وہ ایک تاریک قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو سوچنے کا امر ہے، جیسے ہی ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو میں نے ان صاحب کو کہا ہاتھ چل رہا تھا، لاٹری نکلی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن چل رہی، لاٹری نکلی ہوئی، آنکھ دیکھ رہی، یہ آنکھ دیکھیے دیکھ رہی، یہ کتنی اربوں روپے سے زیادہ بڑی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھیے جن کے پاس نہیں ہے، جو اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے، جو اپنے لخت جگر کو نہیں دیکھ پاتا، جو اپنی ماں اپنی والدہ کو دیکھ نہیں پاتا چہرہ کیسا ہے والدہ کا، جو اپنے والد گرامی کو دیکھ نہیں سکتا، آپ سوچئے کہ اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا آج جب میں صبح اٹھا اور آنکھ کھولی تو دیکھا تو آنکھ دیکھ سکتی تھی، تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، مجھے تو لاٹری نکل آئی ہوئی ہے میری۔ میں نے کہا میں جب چلا تو میں چل سکتا تھا، ٹانگیں سلامت، ہاتھ سلامت، دماغ سلامت، دیکھیں دماغ کا ایک دھاگا اللہ تعالیٰ ہلا دیں تو بندے کو اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا، یعنی انسان اپنا نام تک بھول جاتا ہے۔ ایک دھاگا دماغ کے اندر سے اگر ہل گیا ذرا سا تو کتنی بڑی اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں، جب بھی کوئی شخص مجھ سے پوچھے کیا حال ہے، میں کہوں گا میں زبردست، بہترین، الحمدللہ، ایکسیلنٹ، فرسٹ کلاس، کمال ہے، زبردست، میں کیوں کہوں؟ لیکن اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں، آپ لوگوں سے پوچھیں کیا حال ہے، ایسے چہرہ بیچارے کا گرا ہوا، پریشان، آنکھیں جھکی ہوئی، کندھے جھکے ہوئے، سر جھکا ہوا، اور کیا حال ہے؟ بس جی گزر رہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بس جی گزر رہی ہے۔ بھئی گزر کیا مطلب رہی ہے؟ زندہ ہو تو زندہ رہنا کتنا بڑا انعام ہے، یعنی زندہ رہنا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ سے صدقے دل سے توبہ کی، اللہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ایسے بس پڑھ لی دل سے اور اللہ سے اپنے گناہوں پر استغفار کی۔ استغفار کا وہ لمحہ موجود ہے، جیسے ہی استغفار کیا اللہ کی رحمتیں ایسے ٹھاٹھے مار کر برس رہی ہیں، اور گناہ اللہ رب العزت، ہم تو ایسے مبارک مہینے میں جہاں ایسے گناہ
बख्श रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। कोई मांगने वाला तो हो। अल्लाह की रहमतें तो बरस रही हैं, कोई मांगने वाला तो हो। हम तो अल्लाह से भी मांगते हैं ऐसे जैसे दुआएं कई लोग मांग रहे होते हैं, इतनी छोटी छोटी दुआएं। उन्हें डर होता है कहीं बड़ी दुआ मांगू और कबूल ना हो जाए। यानी वो इस डर से वो बड़ी दुआएं नहीं मांगते अल्लाह ताला से। वो जैसे एक साहब थे तो वो दुआ मांग रहे अपने किसी दोस्त के बारे में, तो दुआ यूं मांग रहे, मेरा फलां जो दोस्त है अल्लाह ताला वो बहुत गरीब है, उसको तू अमीर कर दे। ऐ अल्लाह उस दोस्त को तू जो 2 कमरों के घर में रहता है उसको तू बहुत बड़ा आलीशान घर दे दे। और ऐ अल्लाह वो जो मेरा दोस्त है उसको बहुत ज्यादा दौलत और फरावानी और रिज्क की फरावानी और खुशहाली अता फरमा दे। और आखिर पे कह रहे, और ऐ अल्लाह फिर जब उस दोस्त के पास इतना कुछ आ जाएगा तो फिर मुझे उसकी गाड़ी का ड्राइवर अल्लाह ताला रखवा दे। यानी क्या क्या दुआ मांग रहे भाई बंदा खुदा। कह रहा यानी सब कुछ नेमते उसके लिए और अपने लिए मुझे फिर उसके घर उसकी जो गाड़ी है उसका ड्राइवर रखवा दे। यानी भाई वो सारी दुआएं अपने लिए क्यों नहीं मांग रहा कि अल्लाह मुझे आलीशान घर दे दे, अल्लाह मुझे तू रिज्क में फरावानी दे दे। यानी ऐसा इसको डर लगा हुआ है कि कहीं वाकई आ ना जाए मेरे पास। यानी वो खजाने अल्लाह के कहीं आ ना जाए। वो एक साहब थे तो मैंने उनको कहा कि भाई अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगा करो अल्लाह से। तुमने कौन सा किसी बादशाह से किसी वजीर से मांगनी है, तुमने अल्लाह से मांगनी है। रात को उठा करो और तहज्जुद पढ़ा करो और अपनी आखिरत भी मांगा करो और दुनिया भी मांगा करो। क्योंकि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम वकिना अज़ाबन नार। हाँ, दुनिया अगर इंसानों से मांगो तो शायद एक छोटा काम होगा, दुनिया अल्लाह से मांग रहे हो तो ये कौन सा कोई ऐसा कोई मना काम है। ये तो शरई तौर पे दीन में कोई मना नहीं है। अल्लाह से जो मर्जी मांगो, नेमतें मांगो, नेमतों की फरावानी मांगो, रिज्क में बरकत मांगो। तो मैंने उनसे कहा कि ये मांगा करो, तो कहने लगा सर मांगने को दिल करता है कि अल्लाह ताला मुझे कोई बड़ी गाड़ी दे दे, लेकिन सर फिर सवाल ये आ जाता है कि बड़ी गाड़ी अगर मेरे पास आ गई तो मैं सोचता हूं कि मेरे घर में तो गैराज ही नहीं है उस गाड़ी को खड़ी करने का, तो फिर मैं दुआ छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं कि रहने दो भाई। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जो अल्लाह तुझे बड़ी गाड़ी देगा वो तुझे बड़ा गैराज भी दे देगा। यानी जो अल्लाह तुझे बड़ी गाड़ी दे सकता है वो तुझे बड़ा गैराज क्यों नहीं देगा। लेकिन चूंकि उसकी सोच ही इतनी सी है तो उसकी सोच छोटी होने की वजह से फिर सारी जिंदगी छोटा रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जिसका मफहूम है, मैं इंसानों के लिए वैसा ही हूं जैसा वो मेरे बारे में गुमान करते हैं, जैसा वो मेरे बारे में सोचते हैं। जब हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, जब हम अल्लाह से अपनी सोच को बुलंद करके अल्लाह से अल्लाह के मुताबिक मांगना चाहिए। यानी फर्ज कीजिए कि आप में से कोई शख्स है, उसका कोई दोस्त जो बचपन का है, 10, 15, 20 साल के बाद वो फर्ज कीजिए कि किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, कोई बड़ा मर्तबा उसे किसी कंपनी किसी इदारे में मिल जाए, तो उसे आप इतना बड़ा मर्तबा मिला उसे, आप उसके पास इतना सा काम ले जाएं तो वो कहेगा यार मेरे लेवल का काम मेरे पास लाओ ना। यानी मेरा मर्तबा इतना है तो इतना सा काम तुम मेरे पास ले आए हो। वो आपका जिगरी दोस्त है, आपका वो बहुत करीबी शख्स है, तो वो कहेगा मेरे मर्तबे के मुताबिक मेरे पास काम लाओ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने बड़े हैं, इतने अजीम हैं, इतने बुलंदो बाला हैं कि हमें अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। हमारी सोच में जो कुछ आ सकता है वो हकीकत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगी में ला सकते हैं। यस और यस, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? कौन कौन इत्तेफाक कर रहे हैं मेरी बात से? यस, ओके। बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो गए साथी? कहीं बोर तो नहीं हो गए? कहीं ऐसा ना हो बोर हो गए हो, कह रहे हो सर ने तो बोर कर दिया हमें। मैंने ना तकरीबन कोई 1000 से ज्यादा बार लोगों के सामने लाइव सेमिनार दिए हैं। 1000 सेमिनार्स है मेरी लाइफ में जो मैंने लाइव ऑडियंस को दिए हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बफजल ताला किसी को बोर नहीं होने देता। ये मेरे एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक खूबी रखी है मेरे अंदर। तो किसी को जो मेरे सामने मौजूद है इस सेशन में वो बफजल ताला बोर नहीं होंगे। अगर आप बोर हो गए
तो समझ लीजिए कि दुनिया के 7.25 अरब इंसानों में आप दुनिया के सबसे बोर इंसान हैं। यही जो मेरे सेमिनार के बाद भी अगर आप बोर हो गए तो आप वो यूनिक मखलूक हैं, आप वो एक समझ लीजिए वो एक उजूबा है जो कि दरियाफ्त हो जाएगा। तो प्लीज आपने बोर नहीं होना। बोर तो अब तो जो हो रहा था वो भी कहेगा नहीं नहीं मैं बोर नहीं हो रहा। तो बस अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसे जोड़े रखे और अच्छे कामों के अंदर लगाए रखे। तो जो पहला नुक्ता मैंने अर्ज किया वो ये था कि हमें अपना हर हाल, हर आन, हर घड़ी में अपना तवज्जो का मरकज अल्लाह को बनाना है। दूसरा नुक्ता जो मैंने अर्ज किया वो ये कि हमें हर हाल में शुक्र की आदत अपनानी है। ऐसी शुक्र की आदत अपनानी है कि हम हर हाल में, ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज्यादा अच्छे हुए तो कहा अल्लाह का शुक्र है, हालात खराब हो गए नहीं अल्लाह ताला अब तो शुक्र नहीं है, अब तो तूने मुश्किल पैदा कर दी है। नहीं नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये शुक्र की आदत अपनाना है। जब शुक्र की आदत अपना लेंगे, ओहो ऐसा इत्मीनान आ जाएगा, ऐसा सुकून आ जाएगा कि मैं बता नहीं सकता आपको, यानी वो बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी अंदरूनी कैफियत हो जाएगी। वो कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि कोई फिर हुज़्न नहीं होगा, कोई मलाल नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। यानी ऐसा हुज़्न, डर खत्म हो जाएगा कि उसके बाद फिर कोई डर नामी चीज ही नहीं रहेगी। आज तक कभी हमने सुना है कि कोई परिंदों की लाशें कहीं देखी हमने कि वो फक्र से मर गए? परिंदों की कभी कतारें देखी? कतार अंदर कतार कहीं परिंदे पड़े हुए थे, लाशें, और वो जी खाना नहीं मिला उनको। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो परिंद चिरिंद की आज तक कहीं लाशें दरियाफ्त ऐसे नहीं हुई, तो इंसान कैसे भूख से मर जाएगा? हाँ अलबत्ता भूख के डर से इंसान मर सकता है, भूख से नहीं मर सकता। भूख के डर से और खौफ से इंसान मर जाएगा। वो डर और खौफ इंसान की जान ले सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में जगह जगह फरमाते हैं कि जो हमारे साथ लॉ लगा लेते हैं, शुक्र करने वाले बन जाते हैं, फिर हम उनका मलाल खत्म कर देते हैं, उनका डर खत्म कर देते हैं, खौफ खत्म कर देते हैं। फिर उनको ऐसा इत्मीनान और सुकून अता फरमाते हैं कि देखने वाले को नहीं लगता कि ये बंदा इस इत्मीनान में कैसे हो सकता है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, एक प्लाजे के अंदर आग लग गई। कासिम साहब, एक प्लाजे के अंदर आग लग गई, तो उस प्लाजे के अंदर कपड़े की ताजरों की बड़ी बड़ी दुकानें थी और हर दुकान में करोड़ों रुपए का कपड़ा पड़ा हुआ था। तो आग लग गई और सारा जो प्लाजा था वो जलकर राख हो गया। खुशकिस्मती ये थी कि उस दिन छुट्टी थी और कोई ताजिर दुकान के अंदर मौजूद नहीं था, छुट्टी वाला दिन था। तो लोग बच गए लेकिन दुकानें सब राख हो गई। तो जिस जिसको पता चला मेरे करोड़ों रुपए का सामान जल गया, वो उन पे गश का आलम तारी हो गया। वो बेहोश हो गए, कोई परेशान हो गए, कोई बेचारे धाड़े मार मार के रोने लगे। एक साहब वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि तमाम दुकान जल के राख हो गई है, लोग रो रहे हैं, दाएं बाएं पागल हुए हैं, परेशान हैं, गम से निढाल हैं, और वो कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो लोगों ने समझा पागल हो गया बंदा। लोगों ने तसल्ली दी, कोई बात नहीं। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का लामहदूद शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लोगों ने कहा लगता है दिमागी तवाजुन खो बैठा है। लोग तसल्ली देने लगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कहने लगे नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहने लगे नहीं अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। वो कहने लगे परेशान कब हूं मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूं। कहने लगे परेशान नहीं है? क्या मतलब परेशान नहीं? करोड़ों रुपए का सामान जल के राख हो गया, आप क्यों परेशान नहीं है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लामहदूद शुक्र है, अल्लाह ने मेरी जान बचा ली है, मैं जिंदा हूं। देखिए अब वो क्या सोच रहे हैं। एक शख्स सोचा मेरी दुकान जल गई, और एक शख्स सोच रहा है मैं बच गया हूं। अब जो शख्स सोच रहा है दुकान जल गई वो परेशान है, और जो शख्स सोच रहा है मैं बच गया अल्लाह का शुक्र है, वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहा है अल्लाह का शुक्र है लामहदूद। तो किसी ने कहा भाई लग रहा है आपका
दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। उन्होंने कहा नहीं देखो मैं समझाता हूं तुम्हें, आज से 20 साल पहले मैं साइकिल पर उसके पीछे कपड़े के 2-2 पीस रखकर गली गली घर घर बेचा करता था, और फिर मैंने 20 साल कबल अपना जीरो से आगाज किया, फिर तरक्की थोड़ी सी हो गई, फिर मैंने सामान थोड़ा सा रखा, फिर एक छोटी सी दुकान खोल ली, फिर थोड़ी सी बड़ी दुकान, फिर चलते चलते 20 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। तो वो कहने लगे कि 20 साल पहले जो शख्स जीरो था वो अगर अल्लाह ने उसको हीरो बना दिया तो 20 साल बाद अब तो मैं ये सारा कारोबार जानता हूं, अब तो हर चीज मुझे पता है, इसके उसूल कहां है, कहां से सस्ता मिलता है, कहां से लेना होता है, कहां बेचना होता है, क्या तरीकाकार है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया हूं, कोई बात नहीं, मैं वही सारा कारोबार अब बहुत जल्दी दोबारा खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि पहले तो मुझे मेहनत करनी पड़ी, काफी ज्यादा 20 साल लगे, अब शायद मैं 3-4-5 साल में उस लेवल तक पहुंच जाऊं। तो देखिए सोचने का अंदाज जो है वो सब कुछ बदल देता है। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचना शुरू कर दे मुझे थोड़ा मिला है, तो वो साहब जिनको 1.25 अरब हिस्सा मिला था वो दिल के दौरे से मर गए। और अच्छा, इसी प्लाजे के अंदर एक शख्स ने कहा कि चूंकि ये मेरी दुकान नहीं रही, वो कहने लगे मेरी करोड़ों रुपए की कपड़े की दुकान को आग लग गई, वो देख रहे आग लग गई, कपड़े जल गए, और वो भी अंदर छलांग मार रहे, कह रहे अब कपड़े की दुकान नहीं रही, अब मैं क्या करूंगा। उन्होंने भी छलांग मार दी अंदर, और अंदर जाके बेचारे वो भी जल के राख हो गए उन कपड़ों के साथ। ये एक ही प्लाजे के 2 वाकयात हैं। एक वाकया ये है कि एक शख्स कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया, 4-5 साल में दोबारा खड़ा कर लूंगा, और एक शख्स कह रहा है मेरी दुकान को आग लग गई, मेरा सब कुछ चला गया, अब मैंने क्या करना है जिंदा रहकर, और कपड़े की दुकान में छलांग मार रहा है जैसे कपड़ा वापस आ जाना है वहां से, और खुद भी बेचारा जल कर राख हो गया। तो जो हमारी सोच का जाविया है वो हमें जिंदा रहने की उम्मीद पैदा करता है, वो हमारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है, आगे बढ़ने का शौक पैदा करता है। आज जहां पर आप हैं जरूरी नहीं है कि कल भी आप यहां पर होंगे, लेकिन एक सूरत में आप वहीं रहेंगे जब आप अपनी सोच को उधर ही रखेंगे, तो फिर आप वहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप कहें नहीं अल्लाह की नेमतें वसी हैं, अल्लाह के खजाने वसी हैं, मुझे अल्लाह बुलंदो बाला कर सकता है, मुझे मेरे दिन बदल सकता है, और फिर मेहनत में लग जाए, काम में लग जाए, स्ट्रगल में लग जाए, कोशिश में लग जाए, तो अल्लाह आपके दिन बदल भी देगा। क्या ख्याल है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? कौन कौन इत्तेफाक कर रहे हैं मेरी बात से?